some important informations are there. Note down the information. This year the examination will be conducted in 2 terms, term first and term second. I am going to say something about the first term syllabus. Board will conduct the first term examination. That means board will give the paper. We have to give the board examination like that. So note down the things. 2 passages are there, that is common. Practice from the practice book. The passages. उसमें कुछ पढ़ के जाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें तो अपने आप कुछ भी एडजस्ट करके बस करना है. जो भी क्वेश्चन आएगा पैसेज पढ़ के करना है और इसमें पर्टिकुलरली कुछ पढ़ने के लिए नहीं. बट द वे वी हैव टू राइट द आंसर, दैट वी हैव टू प्रैक्टिस. On the spot questions are very difficult to analyze, so you will lose the time by reading the passages. Whatever it may be, we have to write the examination. The number you will score will directly go to board exam, your final examination, final result, I think. So don't neglect it. You have to give the board examination, and the board examination, it is a part of board examination, you have to give the board examination. The number you will score in the examination will go directly to the final result. So don't be show relay or delay. First part will be reading part. 2 passages will be there. Whatever may be the questions, you have to answer. Term wise syllabus is there, and some changes are made from the main syllabus, so you have to note down this. 2 passages will be there. That is over. And writing skill for first time examination, formal letter based on the given situation. You have to write a formal letter. Formal letter is otherwise known as official letter. Official letter में विशेष करके इसमें फॉर्मेट स्टार्टिंग में पूरा लेटर कराया था, याद है तो उसको रिवाइज करना उठा के. फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन. Number 1, letter to the editor. Letter to the editor. Number 2, letter of complaint, official letter. जैसे लिखते हैं ना पुलिस वालों को, कलेक्टर को या अधिकारी लोगों को जो कंप्लेंट लिखते हैं हमारे जो कुछ सामाजिक प्रॉब्लम है उसके बारे में, ये तो ऑफिशियल है. तो ऑफिशियल लेटर का मॉडल में लिखना होता है. That is letter of complaint. And next letter of complaint business. ये भी कंप्लेंट है लेकिन बिजनेस लेटर है. बिजनेस लेटर में कंप्लेंट क्या होता है, हमने कोई चीज़ मांगा वो गलत निकला तो उसको हिसाब किताब करने का जो कंप्लेंट है. कैसे कंप्लेंट, जो चीज़ हमारे पास आए उसमें ये प्रॉब्लम है, या पैकिंग ख़राब है, या टूटा हुआ है, जो भी है, तो वो होता है बस नोट करने वाली दूसरी पॉइंट. सो द फर्स्ट वन इज लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल एंड लेटर ऑफ कंप्लेंट बिजनेस. ये अभी से बैठ के प्रैक्टिस करना शुरू करो. देयर विल बी प्रैक्टिस बुक विथ यू एंड यू हैव टू कंसल्ट द बुक एंड लर्न all these things. Okay,
letter to the editor, letter of complaint official, and letter of complaint business. And then grammar. ग्रामर में टेंस आता है, मॉडल आता है, सब्जेक्ट वर्ब कंकोड आता है, डिटर्मिनर आता है, रिपोर्टेड स्पीच आता है, कमांड एंड रिक्वेस्ट आता है, स्टेटमेंट आता है, क्वेश्चन आता है. ये तीनों रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है. कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन, ये तो पूरा हो ही गया एक तरह से. ये होता है ग्रामर पोर्शन. टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कंकोड, डिटर्मिनर, ये सब लोअर क्लास में प्रैक्टिस किया लास्ट ईयर भी. जो भी प्रैक्टिस नहीं हुआ है उसको अभी से उठा के प्रैक्टिस करना शुरू करो, बिकॉज द फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन इज कमिंग नियरर. तो उसके लिए यू विल नॉट गेट ए टाइम, सो इमीडिएटली you have to start all these things, otherwise you will lose the time and you will not get the time to prepare all the subjects. Be careful. Go start from today itself. Don't miss the time. Sunday, Monday, बारिश का मौसम, ये सब कुछ सोच के if you waste your time, the first time examination will come and you will face problem. Okay? So बुक में से हमने पहले देखा था तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट देते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप. ऑब्जेक्टिव टाइप, एक्सट्रैक्ट, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, ये तो आएगा. इसका प्रिपरेशन करना. आपकी बुक है एक तो फर्स्ट फ्लाइट में से फर्स्ट टाइम में कितना कवर करना है देख लो. 1, ये लेटर टू गॉड पढ़ाया था. सेकेंड, नेल्सन मंडेला पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे अभी. थर्ड, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ाया. 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ाया. द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पढ़ाया एंड द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 पढ़ाया. नहीं है तो पढ़ाएंगे, बस बताओ. ये लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस सेकेंड. इतना फर्स्ट टाइम में फर्स्ट फ्लाइट में से पढ़ना. देख लिया. द लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड द 100 ड्रेसेस सेकेंड. ये फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे. इसके अलावा पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये टाइगर इन द सू, द बोल्ड पोएम, ये सब पढ़ा चुके हैं. पढ़ा है ना ये पूरा? याद नहीं होगा? नहीं है तो याद करो. ये पोएम है, ये 4 पोएम पढ़ने, ये तो पहले पूरा पढ़ा चुका है. डस्ट ऑफ स्नो पहले, फायर एंड आइस दोनों एक साथ था, दोनों ही पढ़ा है. ये टाइगर इन द सू सेकेंड लेसन में है, लेकिन लेसन नहीं पढ़ाया, लेकिन पोएम पढ़ाया था. थर्ड, द स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसमें कोई पोएम तो है नहीं. दूसरा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वो तो नहीं पढ़ना. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स नहीं पढ़ना. उसका दूसरा पोएम द बोल्ड पोएम पढ़ना है, पढ़ाया था. पोएम पूरा हो गया, लेसन में रह गया था नेल्सन मंडेला, वो अभी शुरू करेंगे. और नेक्स्ट है
फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लेसन तो पढ़ना है। पोएम अभी नहीं है, पोएम अगले बार। द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट, द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकेंड, उसमें जो पोएम है वो भी बाद में पढ़ना है, अभी नहीं। ये पूरा फर्स्ट टाइम में आ जाएगा। तो बोला 2 पैसेजेस, लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेन, बिजनेस एंड ऑफिशियल, ग्रामर पोर्शन, एक्सट्रैक्ट, स्मॉल क्वेश्चंस, लार्ज क्वेश्चन, फ्लाइट में से या लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड सेकेंड। यही है। दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसमें से हमें केवल 2 ही लेसन पढ़ना है, 3 लेसन पढ़ना है। वो कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ अभी। द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ाया, द थीव्स स्टोरी पढ़ाया, मिडनाइट विजिटर और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये दोनों नहीं पढ़ना है अभी। नेक्स्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये 3 लेसन पढ़ना। कौन कौन सा? द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये तीनों फर्स्ट टाइम के लिए तैयारी करनी। ये तीनों पढ़ा चुका है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले में से सब क्लियर हो गया। 2 लेसन बीच में हमने पढ़ लिया, वो भी किसी काम का नहीं निकला। बाकी देख लेंगे, वो तो बाकी सेकंड टाइम में आ जाएंगे, इसलिए अभी से उसका प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा है तो तैयार करके रखना है, वो तो बाद में पढ़ने के लिए। तो ये इस तरह से हो गए 3 लेसन्स। ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब नेल्सन मंडेला हमें पढ़ना है, वो थोड़ा इंट्रोडक्शन बोलूँगा। मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है नहीं, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से अपन कंटिन्यू रखेंगे लेसन। इट्स ए टफ लेसन और कुछ वोकैबुलरी से वो तो बहुत टफ है, इसलिए वो बाद के लिए रखा था। अभी उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, वो नोट करके रखना पड़ेगा। ये लेसन नंबर 2 है। पेज नंबर 17 में कुछ बातें हैं वो बता दूं। आज मेरे पास डाउनलोड किया हुआ पोर्शन तो है ही नहीं, तो मैं तो वैसे बता दूंगा। और सब अपने अपने बुक में देख लें उठा के। बुक नहीं तो सिंपली सुन लें, ज़्यादा तो पढ़ा ही नहीं रहे। और इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। नेल्सन मंडेला वो खुद अपनी बात बता रहे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। राइटर भी खुद है, वो खुद ही बताए ये बात। नेल्सन रोलिख्लाख्ला मंडेला इसका पूरा नाम है। नेल्सन मंडेला का नाम से जाना जाता है। साउथ अफ्रीका से फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है ये। आफ्टर मोर देन 3 centuries 300 ईयर्स के बाद वहाँ एक ब्लैक आदमी ने नीग्रो आदमी प्रेसिडेंट बने।
उनके जीवन के अधिकांश टाइम वो जेल में बिता दिया। उनका पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 252 में वो 400 सीट हासिल करके पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट में से 252 सीट लेके मेजोरिटी में वो इलेक्शन लड़के अधिकार में आए। द इनागुरेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। जब वो प्रेसिडेंट बना तो उसका जो इनाग्रेशन सेरेमनी एक ऐसे एक ओपन थिएटर में हुआ था, प्रिटोरिया में, आजकल प्रिटोरिया कहता है। एक 140 देश के लोग, महान महान नेता लोग उसमें भाग लिए। नेवर एवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ एनी अदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नीग्रो लोगों को पुराना टाइम में लोग गुलाम का जैसा बाज़ार से खरीद के ले जाके घर पे खेतों में काम कराता था, वो सारे बातें यहाँ याद दिलाते। उसके बारे में इसलिए इंट्रोडक्शन दिया है। साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है ये। ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब है नीग्रो जो ग्रुप होता है, उसी ग्रुप का जो मेंबर पहली बार 300 ईयर्स के बाद वहाँ का प्रेसिडेंट बना। इसका मतलब 300 ईयर्स तक और वाइट वालों का शासन था, गोरे लोगों का शासन था। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with the blacks, whites and colored celebrating together। वहाँ के सारे लोग मिलकर गली गली में इस दिन को मनाया। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। वहाँ के गोरे लोग, काले लोग, बाकी बाहर से अंदर से जो भी है सब मिलकर इस दिन को बहुत शानदार तरीक़ा से मना के खुशी मनाया। नेल्सन मंडेला ने बोला, मेरे देश में अब किसी का सुप्रीमेसी नहीं चलेगा, कोई किसी को गुलाम बना के रख के शासन नहीं करेंगे, ये घोषणा किया था। उसके बाद जो भी हुआ है तो वो हम लेसन में पढ़ेंगे, और लेसन पढ़ने के लिए बुक तैयार रख लेना और पेन पेंसिल सब कुछ साथ लेके बैठना। तो मीनिंग जल्दी बोल के जाऊँगा, जिसको जिस मीनिंग का ज़रूरत है यू हैव टू राइट डाउन, एंड सम मीनिंग्स आर गिवन इन द बुक एंड द रेस्ट यू हैव टू सर्च आउट फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी भी हर वर्ड का मीनिंग नहीं बताऊँगा जानबूझकर, क्योंकि कुछ वर्ड प्रैक्टिस के लिए आपको भी चाहिए, वो किसी से नहीं पूछोगे, आपको तो वो डिक्शनरी से ढूंढ के निकालना है। साथ साथ आपका डिक्शनरी प्रैक्टिस भी उसी से हो जाएगा, इसलिए ये काम कर लेना, उसी को लेके बस सीख लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास विल बी द रेगुलर क्लास एंड यू विल लर्न द लेसन डिटेल।